Shall I wait 2-3 minutes more? Okay. Let me wait 2-3 minutes. Okay. People will come. We shall start now. You see here, in the last class I started profit and loss and discount. Okay, but I told you what is cost price, what is markup price or market price, and what is the selling price. And the profit or loss is related between selling price and cost price. And I told you about discount also. And a few problems I solved. So let us continue that only today. So in the next class, I will start new topic. So we shall solve some more problems on profit and loss. You see here the question, despite giving a discount of, you know the question, despite giving a discount of 11.11% on the markup price, profit obtained is equal to 14.28%. 14.28%. 14.28%. What percentage is market price over cost price? What percent is market price over cost price? Over cost price. See, once again I will repeat. Despite giving a discount of 11.11% on the markup price or market price, profit obtained is equal to 14.28%. What is the percentage? What percentage is market price over cost price? मतलब क्या है कि आपको तीन टाइप के प्राइसेस है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस. ओके, डिस्काउंट प्राइस. यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा, कम किया जा रहा. कितना कम कर रहे? 11.11% कम किए. कम करने के बाद भी, इवन मार्केट प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट कम करने के बाद भी प्रॉफिट जो है आपका 14.28% हो रहा. प्रॉफिट obtained is equal to 14.28%. So what percent is market price over cost price? Over cost price. Market price over cost price. Market price over cost price. You see here, discount given is 11.11% and 11.11% is nothing but 1/9. These all things you should remember. Even if you don't remember, make 11.11 by 100. Make 11.11 by 100. Despite giving a discount of 11.11% on the markup price, profit obtained is equal to 14.28. डिस्काउंट 11.11% है, मतलब प्राइस मार्क प्राइस से कम दे रहे, और कितना दे रहे वो 1/9. तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकाल सकते हैं. मैं आपको बताया था 1/9 परसेंटेज है तो ओरिजिनल वैल्यू डी रखो. डिक्रीज हो रहा, डिस्काउंट है तो एक 9 - 1 डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करो. तो द रेशियो बिटवीन मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 9:8. ये मालूम हुआ क्या? देखो आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Despite giving a discount of 11.11% on the markup price, profit obtained is equal to 14.28%. Despite giving a discount of 11.11% on the markup price, profit obtained is equal to 14.28%. 14.28%.
व्हाट परसेंटेज इज मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। तो पहले देखिए मार्क प्राइस के ऊपर आपको 1/9 डिस्काउंट दे रहे, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन इज गिवन बाय 1/9 का डिनोमिनेटर 9 और ये 8। द रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 9:8। देखिए इतना करने के बाद भी प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 14.28%। मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी आपको ये कितना मिला, प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट मिला आपको 14.28%, दैट इज 1/7। नोट करो प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रहता, इजंट इट? प्रॉफिट और लॉस इज इन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कितना है, 1/7 है। अच्छा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है मतलब बढ़ता, मतलब व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 7, 1/7, सेलिंग प्राइस विल बी एज इट इज प्रॉफिट, सो 7 + 1 8। डिक्रीज हुआ तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करना, रेशियो निकालने। अगर से ऐड मतलब प्रॉफिट हुआ तो या इंक्रीज हुआ तो ऐड करना। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एसपी, mark price and selling price. This is the relation between mark price and selling price, and this is the relation between cost price and selling price. So now the relation between three can also be got directly, but you see here SP is 8, SP is 8, which is common here is both is same, means ratio can be directly between MP and CP is given by 9:7. Between MP and SP is given by 9:7. So CPMP is given by 7:9. तो क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द परसेंटेज एमपी ओवर कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द मार्क परसेंटेज मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज मार्क प्राइस कितना बढ़ रहा। तो देखिए यहाँ 7 है या 9 है, तो 7 को 9 बढ़ रहा मतलब 2 बढ़ रहा, तो 100 को कितना बढ़ रहा, दैट इज 2/7 into 100। दिस इज द आंसर। तो प्लीज टेक डाउन दिस क्वेश्चन। और ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ये सब मेथड्स आप सीखे बाद ही आप शॉर्टकट मेथड से एग्जाम में कर सकते। और आपके पास अगर से कोई और शॉर्टकट मेथड है आप इससे भी अच्छा कर सकते, तो आप अपने मेथड से कीजिए। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, सो दिस इज 2/7 into 100, 2/7 into 100, 2/7 into 100। So whatever the answer is there, you take down. So next question. देखिए मतलब थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करो। A person uses 1.2 meter scale which reads 1 meter while purchasing the cloth. क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो पहले। A person uses 1.2 meter scale which reads 1 meter while purchasing the cloth and uses 80 centimeter scale which also reads 1 meter while selling it. While selling it, he sells at cost price. He sells at cost price and gives 10% discount. He sells at cost price and gives 10% discount. Find his gain or loss percentage. Find his gain or loss percentage. Find his gain or loss percentage. क्वेश्चन एक बार लिख लो और एक बार सुनो मुझे। देखिए बहुत सी बार क्या होता है, दुकानदार लोग चीट करते। देखिए कभी कभी क्या करते, तराजू तोलते समय नीचे मैग्नेट लगा देते, तो वजन में फर्क आता। हाँ, मोस्ट टाइम्स कुछ मिलावट कर देते, या गलत स्केल लेते, गलत टेप लेते, तो किसी तरह कस्टमर्स को धोखा देते।
तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। सो दे चीट द कस्टमर्स। तो यहां पर एक आदमी क्या करा, अ पर्सन यूजेस 1.2 मीटर स्केल while which reads 1 मीटर while purchasing the cloth। मतलब एक आदमी क्या करा, होलसेल की दुकान में जाके कपड़ा खरीद के लाना, और खरीदते समय क्या किया, वो स्केल कौन सा यूज किया, 1 मीटर का नहीं किया, 1.2 मीटर का स्केल किया। 1.2 मीटर का स्केल करके उसको क्या बोला कि ये 1 मीटर है। यूजेस 1.2 मीटर स्केल और उसको क्या बोला, 1 मीटर। और जब बेच रहा उस वक्त क्या कर रहा, 80 मीटर सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा और बोल रहा कि ये 1 मीटर है। कितनी होशियारी करा देखो, जब खरीद रहा था 1.2 मीटर का स्केल यूज किया और बोला कि ये 1 मीटर का है, तो उसको कपड़ा ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा आपको। और जब बेच रहा तो स्केल को फिर 1 मीटर बोल रहा, लेकिन यहां पर अब उसका जो टेप है, इसका जो स्केल है, इट इज ऑफ 80 सेंटीमीटर। इट इज ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब ऐसा जाके खरीद के लाया और ऐसा बेच दिया, मतलब 1.2 मीटर का स्केल लेकर जाके खरीद के लाया और 80 सेंटीमीटर का स्केल के हिसाब से बेच दिया, लेकिन दोनों जगह क्या बोला वो कि दिस इज द स्केल ऑफ 1 मीटर। और ऐसा करने के बाद क्या किया मालूम है, ही सेल्स एट कॉस्ट प्राइस। कैसा बेचा वो, जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में बेचा, और बेचने के बाद क्या करा, फिर 10% और डिस्काउंट दिया। बेचने के बाद क्या किया, फिर 10% डिस्काउंट दिया। आपको अब ये बोलना है कि या उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो उसका गेन हो या लॉस कितना परसेंटेज है। प्लीज क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, हो सका तो करो, नहीं है तो मैं करने के बाद कम से कम सीखने की कोशिश करो। क्वेश्चन को समझो पहले आप। What he did is, while purchasing the cloth, he used 1 meter scale as 1.2 meter, and while selling he used 80 centimeter scale as 1 meter. And after doing all these irregular things, he sold the cloth at cost price only. He sold the cloth at cost price only, and he gave a discount of 10%. He gave a discount of 10%. So what is his gain or what is his loss? I will do it. देखिए पहले क्या करें, मान के चलेंगे कि हम उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, 100 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा। 100 हम इसीलिए ले रहे क्योंकि कैलकुलेशन इजी होते। देखिए पहला क्या करा, वो 1 मीटर का जो स्केल था वो 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करा हुआ, तो 1 मीटर के लिए 120 सेंटीमीटर यूज करा, और जब बेचा तो उस वक्त वो 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करा। कितना यूज करा, 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करा। मतलब देखिए वो किया क्या है मालूम है कि 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करने से उसको कितना, 1 मीटर के लिए कितना ज्यादा कपड़ा आया, 20 सेंटीमीटर ज्यादा आया कपड़ा, क्योंकि स्केल 120 सेंटीमीटर का है और बोल रहा हो कि 1 मीटर का है, तो कितना कपड़ा ज्यादा आया, 20 सेंटीमीटर। अब इतना जो 120 सेंटीमीटर लाया, वो जब बेचते समय क्या करा, वो 80 सेंटीमीटर का लगा के बेचा, तो फिर उसको यहां पर कितना हुआ, यहां पर और 20 सेंटीमीटर बच गया। ज्यादा 20 सेंटीमीटर लाया और कम 20 सेंटीमीटर बेच दिया, तो मतलब उसको सेव कितना कपड़ा हुआ, उसको 40 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कॉस्ट मिला, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट मिला, और बोल रहा कि सेम प्राइस में जैसा मैं लाया वैसा ही बेच रहा हूं। तो देखिए उसको टोटल कॉस्ट कितना लगा। एक्चुअली क्या है मालूम है, वो बेच रहा कितना, 100 सेंटीमीटर कपड़ा 80 मतलब 80 रुपीज, 100 का 80 में बेच रहा, 80 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपीज में बेच रहा, तो उसको 1 सेंटीमीटर को 100/80 लगता, तो उसके पास कपड़ा कितना है एक्स्ट्रा 40, तो 100/80 इंटू 40 करने से उसको 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे। तो शुरू में कॉस्ट कितना था उसका, टोटल कॉस्ट 100 रुपए था, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा था उसको कितने पैसे लगे,
₹50 लगे, तो उसको टोटल पैसे कितने मिले? 150 रुपीज। कपड़ा खरीदा ₹100 में और ही सोल्ड इट एट 150। अच्छा, इतना आने के बाद फिर क्या कर रहा हो? फिर डिस्काउंट दे रहा। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहा? 15। डिस्काउंट कितना दे रहा? 15। अच्छा, 15 डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट दे रहा है। एक्चुअली 10% डिस्काउंट मतलब 150 उसका बिल हो गया, उसका 10% डिस्काउंट दे रहा, तो उसको 135। तो खरीदा 100 रुपीज में, बेचा 135 में, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? 35 रुपीज ऑन 100 रुपीज। सो हिज गेन इज 35%। हिज गेन इज 35%। प्लीज देखो, इसको लिख लेने के जैसा कुछ ज्यादा है नहीं, इसको समझो। कुछ डाउट है तो पूछो, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता, याद रखो। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिस जब मैं खुद करता हूं तो टफ करता हूं, आपको इजी क्वेश्चन ही देता हूं। तो इसमें कुछ आपको डाउट है तो यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Yes, any doubt, any questions? Nothing? समझ में आया सबको? Shall I move further? कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 मीटर का सेंटीमीटर का स्केल यूज करके 1 मीटर बोला, और बेचते समय 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करा और बेचा, और इसके दरमियान उसको कपड़ा कितना बचा? 40 सेंटीमीटर। वो पहले आप निकालो, उसके बाद वो सेम कॉस्ट प्राइस पे बेचा, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट करा। इतना सब करने के बाद भी ही गॉट 135 रुपीज। सो 100 को 135 बढ़ गया उसका, तो उसका गेन इज 35%। नाउ टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A man bought pen set 3 for a rupee. A man bought pens at 3 for a rupee. A man bought pens at 3 for a rupee. मतलब ₹1 में 3 पेन लाया। A man bought pens at 3 for a rupee. How many for a rupee must he sell to gain 50%? How many for a rupee must he sell to get 50%? मतलब उसको 50% प्रॉफिट होने के लिए ₹1 में कितने बेचना? ₹1 में कितने पेन बेचना ताकि उसको 50% प्रॉफिट हो सके? ट्राई करो, मैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं। देखिए, ₹1 में 3 पेन मिल रहे, ₹1 में 3 पेन मिल रहे, तो अब वो ₹1 में कितने पेन बेचना so that he should get a profit of 50%. He should get a profit of 50%. Yes, do it please. आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? मैं करूं। अ मैन बॉट, ₹1 में 3 पेन लाया, तो उसका परसेंटेज 50% बढ़ाना है, तो ₹1 में कितने बेचना? देखो, बहुत उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, ₹1 में 3 पेन लगा, तो उसको प्रॉफिट बढ़ाना है 50%।
जो प्रॉफिट बढ़ाना है 50%। 50% बढ़ाना है मतलब ये 1 रुपए में से उसको 1.5 रुपए इनकम होना। देखिए 50% उसका इनकम बढ़ना मतलब 1 रुपए है तो उसको 1.5 रुपए होना, तो उसको 50%। तो पहले वो क्या करता था, 1 रुपए में 3 पेन लाया, लेकिन बेचा कैसा वो, व्हाट ही डिड इज वो 1.5 रुपए में 3 पेन बेचा, तब जाके उसको 50% प्रॉफिट हुआ। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि 1 रुपए में कितना बेचना हो। देखिए 1.5 रुपए में 3 बेच रहा, तो एक को कितना लगा, 50 पैसे। तो एक को 50 पैसे है तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 2 बेचेगा। मतलब अगर से वो 2 पेन बेचेगा तो उसको 50% प्रॉफिट होगा। if he sells if he sells 2 pens, then only he will get a profit of 50%। एक बार और मैं क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, a man bought pens at 3 for a rupee। 1 रुपए में 3 पेन लाया और उसको 50% प्रॉफिट में बेचा, तो 1 रुपए में उसको कितना बेचना चाहिए ताकि वो इतना प्रॉफिट ही आ सके। तो देखिए 1 रुपए में अगर उसको 50% प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसको 50% ओरिजिनल से बढ़ाना पड़ेगा। तो इज नेक्स्ट अमाउंट इज 1 रुपीज 50 पैसा, दैट इज 1.5 रुपया। अच्छा 1 रुपए में 3 लाया तो 50% प्रॉफिट के बाद भी 1.5 रुपए में 3 ही बेच रहा हूं। लेकिन हमको 50% प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि 1 रुपए में कितने बेचाओ। तो देखिए 1.5 रुपए में 3 बेचा, तो एक को 50 पैसे, तो 2 को 1 रुपया, तो 1 रुपये को कितने पेन बेचेगा, 2 पेन बेचेगा। तब जाके उसको 50% प्रॉफिट हो जाएगा। You will get a profit of 50%। डाउट्स है तो you can ask this। If you have any doubts, you can ask। और लिख लिए, समझ में आया? कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो। इफ इट्स ओके, यू अंडरस्टूड, इज वेल एंड गुड। जो जो थोड़े डिफिकल्ट है मैं करते जा रहा हूं, जो इजी है आपको करने पड़ेंगे, जो इजी है आपको करने पड़ेंगे। ओके, नाउ यू सी, a man sells 2 flats at the rate of rupees 1.995 lakh each। मतलब एक आदमी के पास 2 फ्लैट्स है और दोनों फ्लैट बेच दिया। कितने में बेचा, एक फ्लैट बेचा 1.995 में और दूसरा प्लॉट भी उसी रेट में बेचा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अ मैन सेल्स 2 फ्लैट्स एट द रेट ऑफ 1.995 लाख ईच। 2 फ्लैट्स कितने बेचा हो, 1.995 रुपीज में। ऑन वन ही गेट्स 5% profit, on one he gains 5% and on the other he loses 5%, he loses 5%। his gain or loss percent in whole transaction is, in whole transaction is। तो देखिए पहले क्या किया, एक आदमी के पास 2 फ्लैट्स थे, एक 1.995 में बेचा, दूसरा भी 1.995 में बेचा, लेकिन एक में उसको प्रॉफिट हुआ 5%, एक में लॉस हुआ 5%। इसका मतलब दोनों का खरीदी रेट सेम नहीं था। ये पहले खरीदा होगा सस्ते में मिला, ये जो रिसेंटली खरीदा होगा महंगा मिला। तो व्हाट हैपेंड हियर इज, so he gained 5% for first flat and he lost 5% for second flat। क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं? देखो अब आपको बनाना है कि इतना सब जब वो कारोबार किया, इतना सब बिजनेस किया, इन द एंड वेदर ही गॉट द प्रॉफिट और ही लॉस्ट द अमाउंट, दैट यू हैव टू डिटरमाइन, दैट यू हैव टू डिटरमाइन। A man sells 2 flats at the rate of rupees 1.995 lakh each
On one he gains 5% and on the other he loses 5%. His gain or loss percent in whole transaction is how much? प्लीज जरा सोचो, 2 मिनट टाइम देता हूं। तो डिफिकल्ट है, कोशिश तो करो, कम से कम कुछ क्वेश्चन को तो समझने की कोशिश करो हाथ में पेन लेके। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल डू, जो डिफिकल्ट है मैं करता हूं। मैं करूं, देखिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ देखिए, 2 फ्लैट्स है उसके पास और वो दोनों भी बेच दिया। उसके पास 2 फ्लैट्स है और दोनों भी बेच दिया। अच्छा, एक का रेट कितना है 1.995, दूसरे का रेट कितना है 1.995। तो दोनों बेचने के बाद उसको कितने पैसे आए 1.995 प्लस 1.995 आई थिंक 3.99। सो 3.99 लाख रुपीस उसको मिल गए जब वो दोनों फ्लैट्स बेचा। नाउ द क्वेश्चन इज उसको दोनों फ्लैट्स कितने में मिले। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फ्लैट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फ्लैट। देखिए, पहले फ्लैट बेचा 1.995 में और उसको गेन हुआ 5%, इजंट इट। फर्स्ट जो फ्लैट है उसके पास वो बेचा 1.995 में और उसको प्रॉफिट हुआ, जबकि दूसरे फ्लैट में 1.995 बिका लेकिन उसको लॉस हुआ 5%। इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है इसका ये कम है और इसका ज्यादा है। ये कम है तभी जाके उसको फायदा होता ना। तो आपको सेलिंग प्राइस तो मिल गया, दोनों को ऐड करो, 2 सेलिंग प्राइस मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकालना है। आपको क्या करना है, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। याद रखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इज लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड। ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट फ्लैट, फॉर द फर्स्ट फ्लैट ए कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1। अच्छा, उसको फायदा कितना हुआ यहाँ पर फर्स्ट फ्लैट में 5%। 5% मतलब 1/20, 1/20 मतलब ये 20 रहेगा और ये ज्यादा हो जाएगा 20 प्लस 1 21। सो फर्स्ट में रेशियो रहेगा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का 20:21। अच्छा, जब ये 20:21 है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1.995। तो आप बहुत आसानी से ये निकाल सकते हैं, 21 को 1.995 है तो 20 को कितना, तो 20 को आता 1.9। इसका मतलब पहला फ्लैट ओ 1.9 लाख रुपीस में लिया और बेचा 1.995 में, तो ही गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। he gained a profit of 5%। he gained a profit of 5%। आया समझ में। दूसरे में क्या हुआ, यहां पर भी बेचा 1.995 में लेकिन यहां पर उसको लॉस है और वो लॉस भी 5% है, तो वो भी 1/20 होगा। तो इन दोनों का रेशियो कैसा निकालता हूं मैं, यहां डिनोमिनेटर लिखता हूं, और लॉस हुआ, कम हुआ, इसलिए ये 20 - 1 19 होगा। तो CP2 SP2 का जो रेशियो है दैट इज 20:19। और यहां पर देखिए 19 को
1.995 है तो 20 को कितना, और 20 को आता 2.1, 20 को क्या आता 2.1। तो ये फ्लैट 1.9 में खरीदा, 1.995 में बेचा, और ए फ्लैट 2.1 में खरीदा और 1.995 में बेचा। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ टोटल? कॉस्ट प्राइस फर्स्ट का 1.9, सेकंड का 2.1, तो उसको कॉस्ट प्राइस बिल्डिंग दोनों मिला के खरीदा वो 4 लाख में, दोनों मिला के खरीदा 4 लाख में, और बेचा कितने में? बेचा 3.99 में, क्योंकि एक 1.995 है, दूसरा 1.995 है, तो टोटली ही सोल्ड द बिल्डिंग फॉर 3.99। तो खरीदा 4 लाख में, बेचा 3.99 लाख में, तो उसको परसेंट, इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ऑटोमेटिकली नुकसान हुआ, क्योंकि 4 लाख में खरीद के 3.99 लाख में बेच दिया, तो उसको नुकसान हुआ। तो 4 लाख को कितना नुकसान हुआ? 4 लाख को 4 माइनस 0.01 नुकसान हुआ, तो 4 को 0.01 नुकसान हुआ, तो 100 को कितना? तो 100 इंटू 0.01 बाय 4 करो, आई थिंक इट इज 0.25% उसको लॉस हुआ, 0.25% उसको लॉस हुआ। कुछ डाउट है? 1 मिनट टाइम देता हूं आपको, लिख लो, और कुछ डाउट है तो पूछो। If you have any doubts, you can ask. समझ में आया क्या नहीं? देखो, दो फ्लैट्स खरीदा, दोनों 1.95, 995, 995 में बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 3.99। एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो आप। देखिए, इसमें गेन होने से रेशियो 20-21 आता, 21 को इतना है तो 20 को कितना 1.9 होता। यहाँ पर लॉस है इसलिए 20 को 19 है, तो यहाँ पर आता 2.1 आता कॉस्ट प्राइस। तो 1.9 2.9 दोनों ऐड करो तो इट इज 4 lakhs। सो 4 lakhs इज द कॉस्ट प्राइस, और 3.99 इज द 3.99 is the what it is selling price। तो 4 को 3.99 मतलब माइनस करो, तो 4 lakhs में खरीदा, तो उसको नुकसान हो गया 0.01% रुपीज, lakhs रुपीज, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो 100 को कितना हुआ? 100 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 4, आई थिंक माई आंसर इज 0.25। आप भी चेक करके देखो, दिस मच लॉस ही हैज टू बियर when he sold 2 flats at 1.995 rupees, 1.995। कुछ डाउट्स है तो पूछो। इसके बाद के सब इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं अब। ओके, इसके बाद एक ब्रेक ले लो। 8 तक क्वेश्चन हो गए, 9 से क्वेश्चन आने के बाद कराऊंगा मैं आपको। एक ब्रेक ले लो, कुछ डाउट्स है तो पूछो प्लीज। ओके, बहुत शॉर्ट ब्रेक ले लो इतना रिकॉर्डिंग होने तक, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो प्लीज। Have a break of